مجیب وقت اسر صدا میں حسین ہوں، مجیب وقت اسر صدا میں حسین ہوں۔ کاٹو نہ میرا خشک گلا، کاٹو نہ میرا خشک گلا، میں حسین ہوں، مجیب وقت اسر صدا میں حسین ہوں، مجیب وقت اسر صدا میں حسین ہوں۔ سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں، سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں، آہستہ تو چھری کو چلا، آہستہ تو چھری کو چلا، میں حسین ہوں، مجیب وقت اسر صدا میں حسین ہوں، مجیب وقت اسر صدا میں حسین ہوں۔ اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، میں بار بار کہتا رہا، میں بار بار کہتا رہا، میں حسین ہوں، مجیب وقت اسر صدا میں حسین ہوں، مجیب وقت اسر صدا میں حسین ہوں۔ کٹتا ہوا گلا میرا دیکھا نہ جائے گا، کٹتا ہوا گلا میرا دیکھا نہ جائے گا، نانا میں ہوں نواسا تیرا، نانا میں ہوں نواسا تیرا، میں حسین ہوں، مجیب وقت اسر صدا میں حسین ہوں، مجیب وقت اسر صدا میں حسین ہوں۔ بے بازوں کی لاش تڑپ کر الٹ گئی، بے بازوں کی لاش تڑپ کر الٹ گئی، آئی فرات پر جو صدا، آئی فرات پر جو صدا، میں حسین ہوں، مجیب وقت اسر صدا میں حسین ہوں، مجیب وقت اسر صدا میں حسین ہوں۔ زانوں پہ رکھے سر کو کہا ایک ضعیف نے، زانوں پہ رکھے سر کو کہا ایک ضعیف نے، اکبر کہاں ہے درد بتا، اکبر کہاں ہے درد بتا، میں حسین ہوں، مجیب وقت اسر صدا میں حسین ہوں، مجیب وقت اسر صدا میں حسین ہوں۔ اے شامیوں کفن نہ دیا مجھ کو غم نہیں، اے شامیوں کفن نہ دیا مجھ کو غم نہیں، دے دو میری بہن کو ردا، دے دو میری بہن کو ردا، میں حسین ہوں، مجیب وقت اسر صدا میں حسین ہوں، مجیب وقت اسر
سے جگر ہے تپا لب پہ ہے آہو بکا ہم سے جگر ہے تپا لب پہ ہے آہو بکا ہم سے جگر ہے تپا لب پہ ہے آہو بکا ہم سے جگر ہے تپا لب پہ ہے آہو بکا مردوں میں کوئی نہیں شرم سے سر ہے جھکا مردوں میں کوئی نہیں شرم سے سر ہے جھکا مردوں میں کوئی نہیں شرم سے سر ہے جھکا مردوں میں کوئی نہیں شرم سے سر ہے جھکا سر پھیر کر عابد خستہ جگر کہتے ہیں سر پھیر کر عابد خستہ جگر پیارا ہوں بھائی سے فکر میں عمر بلانے کے لیے آیا یزید نے حکم دیا امام سجاد کو بلا لائے تو ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہا میرے لال سجاد کیا شام میں کوئی اور شام ہونے والی ہے کیا شام کے زندان میں اب کوئی دوسری شام ہوگی سید سجاد یزید کے پاس پہنچے اور یزید نے کہا ارے میں تمہیں قید میں رکھ کے تھک گیا ارے سید سجاد کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں ارے زینب کے بازوؤں کی رسیاں خود بخود سال بھر میں ڈھیلی ہو گئی ارے یہ رسیاں تھک گئی ظالم بھی تھک گیا قید رہتے رہتے ادادارو ظالم نے کہا اے سید سجاد ارے تم مطالبہ کرو ہم دینے کے لیے تیار ہیں امام سجاد نے کہا ارے کچھ جو تبرکات لوٹے گئے تھے وہ واپس کر دو یزید نے کہا ارے ایک آدمی نے نہیں لوٹا تھا ارے لوٹنے والے تو بہت تھے ہم کیسے تمہیں دے دیں ارے اس کی اجرت دے لے ارے امام سجاد نے کہا ارے تم کیا اجرت دو گے ارے میرے بابا کی ایک انگلی کی اجرت نہیں دے سکتے ارے میرے بھیا علی افضل کے کرتے کی اجرت نہیں دے سکتے ارے میری بہن سکینہ کی چادر کی اجرت نہیں دے سکتے ارے جسے میری دادی زہرا نے اپنے ہاتھوں سے بنی تھی ارے تم کیا اجرت دو گے یزید نے کہا سجاد کوئی دوسرا مطالبہ پیش کرو امام سجاد نے کہا اے یزید تو سب سے پہلے میرے بابا کا کٹا ہوا سر دے دے یزید نے کہا ابھی تمہارے بابا کا سر تمہیں نہیں دیا جائے گا ادادارو روایت میں ملتا ہے کہ تشت طلا سے سڑکیں بولی گئے حسین بلند ہو گیا اور سجاد کے پاس آ گیا سجاد نے کہا اے بابا ارے سجاد کی پوری پوچھ دو تازیانوں سے زخمی ہے بابا ارے آپ بھی پیاسے تھے میں بھی پیاسا ارے میں آپ کے دیدار کا پیاسا تھا آپ کی زیارت کا پیاسا تھا بابا میں آپ کی زیارت کا پیاسا تھا ارے مدت ہوئی آپ کی زیارت نہیں کی تھی اس کے بعد یزید نے کہا اے امام سجاد میں نے تمہیں رہا کر دیا چاہو تو شام میں رہو چاہو تو مدینہ چلے جاؤ ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا میں اپنی پھوپھی زینب کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا ارے جیسا میری پھوپھی زینب مشورہ دے گی ویسا میں عمل کروں گا امام سجاد ابھی یزید کے دربار میں تھے یزید نے حساد کو بلایا حساد آیا امام سجاد کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں جدا کی پاؤں کی بیڑیاں جدا کی ایک مرتبہ حساد امام سجاد کے گلے کا توقع خاردار ارے جدا کر رہا تھا ایک مرتبہ جب جدا کر رہا تھا تو حساد چیخ مار کر زمین پر گر پڑا ارے جب
से फाका हुआ। पूछने वाले ने पूछा, अरे हाथों की हथकड़ियां जुदा की, पाँव की बेड़ियां जुदा की, अरे तू बेहोश नहीं हुआ? अरे गले का धोखे खारदार, अरे जब तू जुदा किया तो बेहोश क्यों हुआ? तारे इतना गहरा धर्म था। अरे मैं ये सोच रहा था कि सज्जाद कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा। सज्जाद जिंदाने शाम में आया। अरे ज़ैनब की नजर पड़ी, आज अंदाज बदला हुआ है। मेरे लाल सज्जाद, जब तुम यहाँ से गए थे हाथों में हथकड़ियां भी थी, पाँव में बेड़ियां भी थी, अरे गले में धोखे खारदार। मेरे लाल सज्जाद, अरे हाथों की हथकड़ियां, पाँव की बेड़ियां क्या हुई? अरे सज्जाद ने कहा, ए बुढ़ी अम्मा, अरे यजीद ने हमें रिहा कर दिया। अरे ये सुनना था कि ज़ैनब ने कब्रे सकीना की तरफ नजर की, अब रिहाई मिली जब मेरी सकीना अरे जिंदान में घुट के मर गई। मेरी सकीना हर शबो रोज अरे मुझसे पूछती थी, पुप्पी अम्मा हमें वतन जाना कब नसीब होगा? पुप्पी अम्मा, अरे ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? ए बेटी सकीना, चलो घर चलो, अरे काफिला जा रहा है। बेटी क्या मदीना ना चलोगी? इमाम सज्जाद से ज़ैनब ने कहा, मेरे लाल सज्जाद, अरे यजीद से कह दो कि हमारे शोधा के सर भेज दे। जब से हमारा वाली शहीद किया गया, हम जी भर के मातम नहीं कर सके, एक मकान खाली करा दिया जाए और हमारे वर्षा के सर भेज दिया जाए। अदादारों सर आते रहे, कभी अकबर का सर आया, उम्मे लैला ने बढ़ के ले लिया, कभी कासिम का सर आया, उम्मे फरवा ने बढ़ के ले लिया, कभी औनो मोहम्मद का सर आया, लेकिन औनो मोहम्मद के सर की लेने वाली कोई भी नहीं। अरे किसी ने कहा, अरे क्या इन बच्चों की माँ मर गई? अरे ज़ैनब ने कहा, ऐसा न कहो, इन बच्चों की माँ जिंदा है, लेकिन मैंने कसम खाई है, रोऊंगी तो हुसैन को, हुसैन को रोऊंगी। आज़ादारो काफिला चलने को तैयार है। बशीर हमारियों को लेके हाजिर हुआ। अब जब हमारियों में सवार होने की नौबत आई, एक मतलब शहजादी ज़ैनब ने देखा कि हरीरो देवा के पर्दे लगे हुए थे। एक मतलब सज्जाद का, मेरे लाल सज्जाद, अरे बशीर से कह दो, अरे काली हमारियों का एहतमाम करे। अरे अब हम इस हमारियों में बैठने के काबिल नहीं है। अरे जब आए थे तो किस शान से आए थे, अरे अब घर उतर गया। अरे ताली हमारी लाई जाए अदादारो, ताकि नजर पड़े तो देखने वाला अंदाजा लगाए कि 72 के सोगवार का काफिला आ रहा। ताली हमारी आई। अब वो वक्त था कि मदीने से चले थे तो किसी एहतमाम से, एक तरफ कासिम थे, एक तरफ मोहम्मद। अरे अब्बास गाजी ने अपने जानुओं को जमीन पर झुकाया था। तब 28 रजब को ज़ैनब मदीने से सवार की थी, सवार हुई थी। आज अब्बास नहीं। अरे मेरा दिल कहता है ज़ैनब ने मक्तल का रुख किया होगा। हे अब्बा, आओ मुझे सवार कराओ, बीबियों को हमारियों में बैठाओ। गलत बीबियां किसी तरह हमारियों में सवार हुई, मगर अदादारों जब काफिला चलने लगा, एक मतलब ज़ैनब ने कहा, मेरे लाल सज्जाद, अरे बशीर से कह दो कि हमें करबला लेता हुआ चले, ताकि हम एक मर्तबा अपने मजलूम भैया की ज़ियारत कर ले, अपने मजलूम भैया पर अश्क फिशानी कर ले। काफिला चला। जब ये काफिला मदीने में, जब ये काफिला करबला में पहुंचा, बेवारियों वारिस लुटी हुई बीवियों के सामने वो कत्लगाह थी। क्या शूर का मंजर अरे निगाहों में फिरने लगा। अरे ये वही कत्लगाह थी जहाँ अशूर 10 मुहर्रम को किसी बहन ने अपने भाई को
मैंने खंजर विवाह होते हुए देखा था। अरे किसी माँ ने अपने करियर जवान के सीने पर पर्ची का फल देखा था। अरे किसी सेवा ने अपने यतीम की लाश पामाल की हुई देखी थी। अरे किसी माँ ने अपने शीर खान बेटे को बाप के हाथों पर खून उतर कर दम तोड़ते हुए देखा था। ये वो तस्वुरात थे अदादारो कि जिससे आंसू का दम ताजा हो गया। मगर अदादारो आज जमीन करबला पर फौजें नहीं है, तलवारें नहीं है, तीनों तलवारों की झनकारें नहीं, बल्कि जमीन करबला पे एक सन्नाटा है। अरे जगह जगह पे खून है, कहीं कासिम के जिस्म से निकला हुआ खून, कहीं अब्बास के शादों से निकला हुआ खून, कहीं हुसैन के हल्कों में बरूदा से बाहुआ खून। पूरी जमीन करबला खून शोहदा से रंगी। अदादारो जब काफिला जमीन करबला पे पहुंचा तो उसी दिन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी भी करबला में इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए आए हुए थे। चंद बड़े हाशिम साहब थे। जाबिर ने फौरा से गुस्ल किया और रेजा ओढ़ी, जिक्र खुदा करते हुए कब्र हुसैन तक आए। जैसे ही कब्र हुसैन पर पहुंचे अपने को कब्र से गिरा दिया। कब्र से निकल के कहने लगे, मौला आपको जालिमों ने 3 दिन का गुजर शहीद कर दिया। मौला आपकी लाशों को घोड़ों की चापों से पामार किया गया। मौला आपके खैमों में आग लगा दी गई। अरे जाबिर अभी बयान कर रहे थे, एक मरतबा कब्र से आवाज आई, ए जाबिर देखो मेरी सितम रसीदा बहन, अरे ज़ैना, अरे कैदे शाम से चुन के आ रही है। ए जाबिर जाओ मेरी बहन को इज्जत और एहतराम से लाओ। ए जाबिर अगर हुसैन जीता तो ज़ैनब की पेशवाई को चाहता। जाबिर कब्र हुसैन से उठते, अरे चंद कदम आगे बढ़े थे। एक मरतबा अरे जाबिर ने देखा कि इमाम सज्जाद अरे नाके से उतर के पापियादा चले आ रहे। अरे कैसे नौयत क्या है, गरीबान चार, अरे गैसों में था, गैसों में खार, अरे सरो सीना पीटते हुए वाह हुसैना, वाह मजलूमा कहते हुए अरे आगे आगे सज्जाद, पीछे पीछे बीबिया, अरे वाह अलिया, वाह मोहम्मदा। अरे जाबिर ने कहा, मौला अरे आपके बाबा की अरे कब्र मुताहर अभी दूर है, अरे यही से पैदल क्यों आनी है। कहे जाबिर अरे जो मैं देखता हूँ, अरे तुम नहीं देखते। इमाम में जाबिर के आंखों पर हाथ फेरा। अरे जाबिर ने देखा अरे इमाम हुसैन अरे सरे बोली था 1951 जख्म खाए हुए आगे आगे, अरे पीछे पीछे 14 करबला, अरे कटी हुई गर्दनों से आवाज आ रही है, मौला अपनी नुसरत को हाजिर है। मौत ने हमें मजबूर कर दिया। अल्लाह खुदावंद आलम आपको किसी गम में न रुलाए। अरे जाबिर बयान करते हैं कि जैसे ही शहजादी ज़ैनब की हमारी कब्र हुसैन के करीब पहुंची तो शहजादी ज़ैनब ने अपने को नाके से गिरा दिया। अरे अब ज़ैनब में इतनी ताकत न थी कि कब्र बरादर तक जाती। हमारी शहजादी ज़ैनब अरे घुटनियों के बाद, केवनियों के बाद, अरे जिस तरह छोटे छोटे बच्चे केवनियों के बल चलते हैं, हमारी शहजादी कब्र हुसैन पर पहुंची, कब्र पे गिरा दिया। ए भैया अरे ज़ैनब आ गई, ए भैया अरे ज़ैनब आई है, मगर अफसोस अरे ज़ैनब जिंदा आई। अरे ज़ैनब कहा था कि ज़ैनब शाम मर जाती, अरे ज़ैनब जिंदा आई। भैया ज़ैनब बड़े सदमे उठा के आई। ज़ैनब हमें तैयार बताया फिराया गया, भैया बाजार में ले जाया गया। भैया अरे 700 कुर्सी नशीन का मजमा था, अली और बतूल की बेटी बसे गरदार हाथ बटे हुए थे। ए भैया अरे सदमा इस बात का है कि तुमने जिस अमानत को मेरे हवाले किया था, अरे
हमारी सकीना की हिफाजत ना कर सकी। आजादारो ज़ैनब कब्र हुसैन पे लिखी हुई बयान कर रही थी। एक मरतबा सैयद सज्जाद आगे बढ़े, बोली अम्मा, अरे राहबर का इसरार है कि आप चल हमारी में बैठ जाइए। ज़ैनब ने कहा मेरे लाल, अरे ज़ैनब की जिंदगी अरे कब्र हुसैन पर तमाम होगी। जब तक ज़ैनब जिंदा रहेगी कब्र हुसैन की मुजावरी करेगी। सज्जाद ने इसरार किया। इसरार सज्जाद से ज़ैनब मजबूर हुई, हमारी में सवार हुई, हमारी में ज़ैनब बैठी। अब काफिला मदीना रसूल की तरफ आगे बढ़ा। हाँ दादारो, जैसे ही मदीना रसूल में काफिला दाखिल हुआ चाहता था, एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम से पूछा, ए बहन उम्मे कुलसूम, अरे ये कौन सी जगह है? उम्मे कुलसूम ने कहा, ए बहन ज़ैनब, अरे आप पैदा कहाँ हुई? कहा मदीने में। कहा आपकी शादी कहाँ हुई? कहा मदीने में। कहा ए बहन ज़ैनब, आप मदीने को नहीं पहचानती। कहे बहन ज़ैनब, मैंने मदीने को बाहर से नहीं देखा। अदाकारो, जिस ज़ैनब के पर्दे का याद आ कि मदीने को बाहर से ना देखा, वही ज़ैनब तैयार बदया शहर बशहर फिराई जा रही। मदीने रसूल में काफिला पहुंचा और मदीने के बाहर काफिला ठहरा हुआ था। एक मरतबा सज्जाद ने कहा, ए बशीर, तेरा बाप भी शायर था, तू भी फन्ने शेर गोई से वाकिफ है, अरे जा मदीना रसूल में हमारे आमद की खबर कर दे। बशीर घोड़े पर सवार हुआ, अरे शाल अज़ा गले में डाली और मदीने में पहुंचा। मदीने में पहुंचकर आवाज दी, अल्लाह हुसैन दे करबला, अल्लाह हुसैन दे करबला। ए लोगों, हुसैन करबला में शहीद कर दिए गए। अरे ये आवाज मदीने के हर दरवाजे से गूंजी, हर गली कूचे से टकराई, हर गली कूचे से दरवाजे खुलने लगे। मदीने के लोग अरे बयान निकलने लगे। एक मजमा हो गया। इतने में बशीर ने देखा एक दरवाजा खुला, एक ज़ईफ़ा घर से बाहर निकली, एक बच्ची हाथों को थामे हुए थी। वो ज़ईफ़ा आगे बढ़ी और बशीर जाके कहती है, ए बशीर बता, अरे करबला में कौन मारा गया? बशीर कहता है, अरे करबला में हुसैन मारे गए। कहा बशीर, अरे कोई आया है? कहा बीबी, मदीने के बाहर काफिला रुका है। कहा बशीर, तू आगे आगे चल, रहनुमाई करता हुआ चल। बशीर आगे आगे चला, वो ज़ईफ़ा पीछे पीछे चली। एक बता बशीर एक मंजिल पर पहुंचा। कहा दीदी, अरे वो देखो सियारन का खैमा है, आप अंदर चली जाओ। ज़ईफ़ा आगे बढ़ी। अब आगे बढ़कर देखा कि खैमे के दरवाजे पर एक ज़ईफ़ बैठा, एक ज़ईफ़ बैठा हुआ है। अरे ज़ईफ़ा आगे बढ़ी, एक ज़ईफ़ रास्ते से हट जा, मैं खैमे में जाना चाहती हूँ। वो ज़ईफ़ अरे उठना चाहता है मगर दोस्तों नकाहत की वजह से उठा नहीं जाता। एक मरतबा ज़ईफ़ा ने अंदाज बदला, ए ज़ईफ़, मैं तुझे कहती हूँ, तुझे हुक्म देती हूँ, रास्ते से हट जा, मैं खैमे में जाना चाहती हूँ। अरे तुझे पता नहीं मालिक की बेवा, अरे तुझे कहती हूँ। अब वो ज़ईफ़ उड़ना चाहता है लेकिन उठा नहीं जाता। अब एक मरतबा आलम जलाल में उम्मुल बनीन ने कहा, अरे तुझे पता नहीं मैं अब्बास की माँ उम्मुल बनीन, अरे ये सुनना था। सज्जाद ने अपने जिस्म की ताकत समेटी, लड़ते हुए हाथ अरे पेशानी पे रखा, अस्सलाम वालेकुम, ए दादी आप पर मेरा सलाम। अरे ये सुनना था। उम्मुल बनीन ने कहा, अरे तू कौन है? तो मुझे सलाम। अरे दादी अम्मा, अरे मैं सैयद सज्जाद सैनुल आबिदीन। उम्मुल बनीन ने कहा, मेरे लाल 22 साल की जिंदगी में सर के बाल सफेद हो गए, कमर खमीदा हो गए। ए दादी अम्मा, अरे
उस पर वो मसाइल पड़े कि सैयद सज्जाद सही सोना पड़ा। अरे बाबा मेरा हुसैन करबला में शहीद कर दिया गया। बस मेरे अदालत दो जुमले मस्जिद तमाम मदीने रसूल में काफिला पहुंचा और काफिला जब मदीने रसूल में पहुंचा शहजादी ज़ैनब का क़याम अब्दुल्लाह इब्न जाफर के घर न था। शहजादी ज़ैनब इमाम सज्जाद के घर थी और अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार रोजाना आते थे, शाम तक बैठते थे, चले जाते थे। एक मरतबा इमाम सज्जाद ने पूछा, फूफा जान आपको कुछ कहना है? पर मेरे लाल सज्जाद कहना तो था लेकिन किस जबान से कहूं? अरे सज्जाद मेरी जबान में हिम्मत है कि मैं जुमला अदा कर। नहीं फूफा जान आपको कहना होगा। तो इमाम सज्जाद ने इसरार किया, तो सैयद सज्जाद ने इसरार किया तो अब्दुल्ला ने कहा, ये सैयद सज्जाद आप अपनी फूफी से कहते अरे वो घर भी तो आता है, अगर वक्त मिल जाए तो ज़ैनब से कहिए वहाँ भी आ जाए। इमाम सज्जाद है, फूफी अम्मा आपको घर जाना